Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshops on technical writing. In this session, we have partnered with Namal University and brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the field of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's workshop on technical writing will be conducted by a very talented trainer, Ms. Nausheen Ahmed Ji. She is a full-time mom to her two boys and a homemaker. Besides the above, she is also the country talent lead at EY Ford Roads, Pakistan, based at Karachi. She is a fellow chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. She was amongst the 25 women selected for Women in Executive Leadership Development Program through the Australian Reward Program. Nausheen has had a diverse career in pharmaceutical, financial, and accounting sector in the area of finance and human resource. Her expertise is in the development of two essential components of business, that is, business strategy and human capital. Her focus has been on embedding robust strategies and operational efficiencies through the process of simplification, standardization, upgrading, and designing business process with a focus on digitized solution. She is presently serving as a country talent leader at EY Ford Roads, a Big Four accounting firm with a human capital of more than 1,500 employees in Pakistan. As an HR lead, her expertise is in analyzing organizational needs with the focus on designing and implementing practical and innovative HR strategies across the company. Have proven ability to engage key stakeholders and successfully drive a large transformation programs. So without any further delays, over to you, Nausheen. Thank you for joining Welcome us. everybody. I hope everybody is doing well. Yeah. Okay, I hope everybody is doing well. So this is the audience is mostly from Islamabad, I would suppose, right? No, we have audience from Namal University now. That is Okay, in all Karachi. right. That is in Karachi. Okay, so I hope you're enjoying the weather with the rain coming in today. I think it's been, a pretty good day to start off with. The winter has crept in, and so it's a good day to start with this thing. I know we are all indoors and in our rooms looking at the laptops, but I think it's going to be a good start. Now, the topic that I was given today to discuss with you is technical writing. Let me just share my presentation. All right, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, we Yes, can ma'am. see you. Excuse me, ma'am. Ari? Yes, you were saying something? मैम आपने वो इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमारा गलत बोला था. We are not from Karachi. It's actually Namal Institute, Miawali. Acha. Okay. Okay. All right. All right then. ठीक है चले. Before I start off with technical writing, do you have do you know what technical writing is all about? Anybody? Do you know what we are doing? What is technical writing? Any idea? If anybody has, you can raise hands, or you can just kind of participate. What we communicate, what we talk to, that is called technical writing. Sorry, can you repeat that? How can we communicate? How can we talk from one person to another? How can we share our ideas is all about technical writing.
Okay, all right. Yes. Ma'am, professional way of communication. Yeah, it's professional communication. Okay, okay, just a second. I just lost my screen. Can you see my screen again, or can you see my presentation? Yeah, Yes, ma'am. Ma'am. I can see. Ma'am. Okay. Just a second. Let me just stop sharing and share again. Okay. So as you all said, that technical writing is about how do we communicate. ठीक है ना, communicate तो हम यूं भी करते हैं. We talk to our friends, we send letters, we send emails, we talk to people. So there is, but how does technical writing differ from our regular communication? ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा I am going to take you through all of that, and then we can then you whatever questions you have in between, do ask me. Okay, here. All right. So as Sahar explained, my name is Nausheen Ahmedji. I'm the country talent leader of EY. Any idea? EY is an audit firm. We are based in Pakistan. My head office is in Karachi. I'm based in Karachi, but we've got offices in Lahore and Islamabad. That's a little about me. I'm a chartered accountant by profession, and I look after HR for EY at the moment. ठीक है ना? And so basically, we've had this discussion, what is technical writing, and I'm gonna now take you through the detail of it. Okay, so any form of communication that shows one or more of the following qualities. So communicating about technical or specialized topic, such as computer applications, medical procedures, or environmental regulations. Communicating by using technology such as web page, help files, or social media sites. Providing instructions about how to do something regardless of how technical the task is, or even if technology is used to create or distribute the communication. So basically what it's trying to say is that technical writing is not writing a story or writing an essay. It has to be very concise. It has to have technical points. And that is very different the kind of writings जो आप लोग अभी तक करते हुए आए हुए हैं. ठीक है ना, मैं आपको और इसके ऊपर मजीद बताती हूँ. तो टेक्निकल राइटिंग कहते हैं व्हाट इज नॉट टेक्निकल राइटिंग. सो टेक्निकल राइटिंग, आपने लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट टेक्निकल राइटिंग. ठीक है ना, वो आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा. अभी तक हम स्कूल्स कॉलेजेस में यही लिखना हमने सीखा है. पोइट्री कैसे लिखनी है, समरीज कैसे लिखनी है, बुक कैसे लिखनी है, कॉम्पोजिशंस कैसे लिखने हैं, हमने यही सीखते आए हैं. बट द डे यू स्टेप इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें चेंज हो जाएंगी और आप लोगों को टेक्निकल राइटिंग करनी होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू डू. सो टेक्निकल राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसिव एसेज, एक्सपोजिटरी एसेज जो होते हैं जिसके अंदर आप एनालिसिस करते हैं कि ठीक है आपके दो चीजें आपको दी गई हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो आपको जो है ना दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है, वो भी टेक्निकल राइटिंग नहीं है. न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वो भी टेक्निकल राइटिंग नहीं है, because that is different from what we are trying to tell you all what technical writing can be. So technical writing basically does not look into poetries, personal experiences, biography आप लिख रहे हैं तो वो टेक्निकल राइटिंग नहीं है. किसी को खत लिख रहे हैं वो टेक्निकल राइटिंग नहीं है. लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर किसी को खत लिख रहे हैं उसका अलग तरीका है बिल्कुल. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द कोर्स ऑफ दिस सेशन. ठीक है ना. सो व्हाट इज अ टेक्निकल राइटिंग. आप लोगों के पास अगर कोई मशीन खरीदते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो उसके सारे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस आते हैं. आप लोगों ने देखी होगी वो 2-3 पेजेस के एक मैनुअल इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं. That is technical writing. Do you like to read it? Basically, it is not something pleasure reading. तो है नहीं कि आपने जो है शाम को as a leisurely आपने पढ़ना शुरू का. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उसके instructions पढ़ना जरूरी है. तो हम किस तरह से लिखेंगे.
एजेंडाज हैं ऑफ द मीटिंग, कोई मीटिंग के एजेंडाज हैं, उसका पूरा मेमो ड्राफ्ट होता है। एक आपको लेटर लिखना है अपने वेंडर को, क्लाइंट को लिखना है, कोई भी चीज लिखनी है, तो ये सारी चीजें टेक्निकल राइटिंग में आती है। आपकी itself a CV is a technical writing, it is not a, उसका फॉर्मेट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही मुख्तलिफ होता है compared to any other writings. So basically अगर आप मुझसे पूछें कि once students are employed, will they have to write on a job? The answer is yes, you will have to keep writing on a job. One reason for teaching technical writing is so students will know that the type of documents that they will have to write on jobs. So again, as I said, कि जो technical writing है, आपको poetries और literature और इन सब से हटकर आप लोगों का जो the way you write a technical letter is very different. ठीक है? Any questions so far? Okay, so I'm going to carry on. So why is technical writing important? ठीक है ना? So when our students are employed and have to write on the job, will they write essays? Again, as I explained earlier, कि नहीं, essays नहीं लिखने हमें. They will not write essays at work. आप लोग अपने colleges में, schools में आप लोग essays लिखते हुए आए, लेकिन जब job शुरू होगा तब आप लोगों की essays नहीं होंगी, unless you go into आप कोई drama लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, that is a different kind of a job. Other than that, if you come into the organizations, आप लोगों को technical writing करनी होगी. That is the way of communicating between your peers, between your office के अंदर जो भी हैं vendors हैं, वो सारा कुछ आपको उनके साथ communication करनी होगी. What takes the place of the essays? So technical writing, memos, letters, reports, emails, proposals, instructions, even web pages. That's why technical writing is important. Technical writing is the type of written communication that our students will be responsible for on the job. Okay, is technical writing necessary for every employee? As you go in the, आप जब organization के अंदर होते हैं, आपको technical writing बहुत ही important है, because and especially as you grow in your position. अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा statistics दिया हुआ है कि एक employee 20% of their time is spent on writing. ठीक है ना? और managers spend 50% of their time writing technical writing कर रहे होते हैं, letters लिख रहे होते हैं, memos लिख रहे होते हैं, क्योंकि their idea is communication. और CEOs और जो आपके top leadership जो organization के होते हैं, उसमें 80 to 100% of the time is communicating. Now communicating is very important, क्योंकि आपको जो है we have to be sure कि whatever we communicate sends across the meaning. वो डबल मीनिंग्स नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जब डबल मीनिंग्स होते हैं, कोई भी आपकी अंडरलाइंग वर्ड्स होते हैं या कुछ भी इस तरह से होता है, दैट डज नॉट रियली रिफ्लेक्ट, इट लीड्स द पर्सन इनटू कंफ्यूजन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर हो और टेक्निकल. दैट्स व्हाई इट इज very important that you know how to write your technical. So if you see how much time is spent on technical writing, and that's why it is very important. And unfortunately schools and colleges में सिखाया नहीं जाता है, बहुत ही कम सिखाया जाता है कि हम ये technical writing किस तरह से करेंगे. So I'm really good about this initiative that was taken. अभी यहाँ पे जो है वो different types of writing की बात हो रही है. It starts with creative writing. Creative writing क्या चीज होती है? Poems होती हैं, plays, stories. और यहाँ पे क्या है कि उसका जो trait है वो connotative and expressive words, fictional characters होते हैं, imaginary होता है, plot होता है. अगर आप लोग books पढ़ते हैं या आप लोग कोई ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें जैसे हैरी पॉटर है या आप कोई भी इस तरह से फिक्शनल कैरेक्टर्स देखते हैं, so that is very different and that all comes into creative writing. Connotative and deconnotative words काफी दफा यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं और उसको मैं आपको आगे चलकर समझाती हूँ कि connotative और detonative words का क्या मतलब है. Expressive writing भी होती है जहाँ पे narratives होते हैं, descriptions होते हैं, बायोग्राफी लिखनी है इस तरह से, तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. अगेन दैट इंक्लूड्स कॉनोटेटिव एंड एक्सप्रेसिव वर्ड्स. एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, व्हिच इज कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस. वो भी, उसमें भी कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव वर्ड्स दोनों इस्तेमाल हुए होते हैं. Journalism is also a type of writing, which is news stories, features, editorials,
अगेन ये ऑब्जेक्टिव होता है, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, इसमें भी दोनों कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो है, और फिर टेक्निकल राइटिंग आती है। टेक्निकल राइटिंग इंक्लूड्स मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, रेज्यूमेस, वेब पेजेस। एंड इसके अंदर इमेजिनरी वर्ड्स नहीं होते, फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं होते, इसमें टू द पॉइंट बहुत चीजें होती हैं। So these are a few of the type of writings that we do, starting with creative. So ये जो communication continuum है, it just includes the kind of writings that we do. Now, as I kept on using this word as connotative and denotative words. जो आपका इसका meaning जो ना आपको dictionary में भी नहीं मिलेगा, but these are the kind of words that we use. Now I'm going to explain you what these words mean. So denotations versus connotation means literal versus emotional. अभी आपने अगर ये dove देखा है, ठीक है ना, it is a dove. ये है क्या? इसका meaning है a stocky seed or a fruit eating bird with a small head, short legs, pointed tails and cooing voice. ये क्या है? ये इसकी definition है, ये bird की definition है। लेकिन ये white bird को आप associate किस चीज से करते हैं? Innocence से, gentleness ने, peace, love, harmony, इससे आप वो करते हैं। So now this is the difference between denotations and connotations, the word. So जो भी word का literal meaning अगर है, उसको आप कहते हैं, वो है denotative words. वो चीज आप technical writing में include करते हैं। लेकिन जो चीज आप associate कर रहे होते हैं, जैसे love, peace, looking at this bird, that is not what you would include in technical writing. So this is one of the biggest difference between writing essays, जिसमें हम metaphors use करते हैं, हम different चीजें का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर connotative words हमारे बहुत इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे हम जब technical writing करते हैं, वहाँ पे definition वाली words होनी चाहिए। That means आप याद रखें कि denotative words are the ones जो defined in a dictionary हो, and connotative words is something that is associated with it. जैसे आप ये देखिए colors हैं, colors का meaning in the dictionary would be different, लेकिन आप जब red color देखते हैं तब आप उसको कहते हैं you associate it with danger, you associate it with anger. Blue जो है you associate it with दो meanings हैं, एक तो peaceful और calm meaning भी है, plus it is कि this person is blue today. What does that mean? It means that this person is sad or is upset. ठीक है ना? So this is the difference between connotative and denotative words. समझ में आ रहा है? और आपको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है ना? I'm just gonna pause here. Yes, ma'am. So now this is how we differentiate. मैम जो आपने डिनोटेटिव के बारे में बताया, फिर इनको हम अपनी टेक्निकल राइटिंग में यूज नहीं करेंगे, वो एज मतलब एक्सप्रेस ही उसे कर सकते हैं बस? नहीं, हमें वही मैं कह रही हूँ कि हमें जो टेक्निकल वर्ड्स हमें जो टेक्निकल राइटिंग में हमें डिनोटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं एंड लेस ऑफ कॉनोटेटिव। ठीक है ना? मीन इमोशन बेस्ड ज्यादा यूज करने हमने जी, इमोशन बेस्ड जो आप कह रहे हैं डिनोटेटिव, इमोशंस कम यूज करने हैं इसके अंदर। आप जो है ना, आपकी जब टेक्निकल राइटिंग्स होंगी तो उसमें आप इमोशंस नहीं यूज करेंगे, उसमें आपका व्हाट यू हैव टू लेट द अदर पर्सन नो इज समथिंग दैट इज फैक्चुअल, और जो बिल्कुल ही आपका कंसाइज वे में आप दूसरे को बता सके। जैसे अगर आपका कोई मैनुअल है, कार का मैनुअल है कि आपको, या कोई मशीन का मैनुअल है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर उसमें कोई लोग ये इस्तेमाल करने लग जाएं कि अच्छा वहां पे ब्लैक का मतलब ब्लैक होगा, वहां पे ब्लैक का मतलब ये नहीं होगा कि it's a sign of danger or anything of that sort. That is not what we really want to kind of give across in that meaning. ठीक है ना? मैं आपको आगे इस एग्जांपल्स भी बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि what I really mean. But the idea of telling you this is कि हम जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग में कॉनोटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, दैट मीन्स आप जब एक डव डालेंगे तो आप उसके साथ वो उसके एडजेक्टिव्स और उसके जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे, उससे आप मीनिंग्स भी लगाएंगे। दैट्स व्हाई आपकी जो एक क्रिएटिव राइटिंग होती है, ये एक्सप्रेसिव राइटिंग होती है, वो लंबी चौड़ी होती है, किताबों की शक्लों में होती है। बट आपकी टेक्निकल राइटिंग हैज टू बी वेरी कंसाइज, so you have to send your message across on a one page
as precise as possible, as concise होना चाहिए. इसके अंदर ज़्यादा आप terminologies or words नहीं use करें. That's why it is very different that you do not use connotative words and use more of technical and denotative words in your writings. ओके मैम, मैम एक और सवाल जी. मैम, इससे जो अगली स्लाइड आपने ये जो व्हाइट डव वाली लिखी है, अगर ये जो व्हाइट डव आपने इधर रखा हुआ है, इसकी जगह अगर एक क्रो रख दे तो फिर आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? अब क्रो का जो है डिनोटेशन जो है वो यही होगा कि इट इज अ ब्लैक बर्ड दैट you know and that is found in certain areas. तो आप crow means a crow, that means they are talking about the animal. लेकिन क्रो से आप एसोसिएट बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये जो है उसकी आवाज बहुत लाउड है, या वो जो है यू नो एनी अदर मीनिंग्स वो आप उससे कर सकते हैं. ठीक है ना, कि इट इज अ बर्ड दैट कैन बी जो मतलब आपको क्रो अगर आता है तो आपको क्या वो होता है, यू नो व्हाट डू यू काइंड ऑफ एसोसिएट अ क्रो विथ? नॉइज. You associate crow with black color, so you don't have to kind of go there. थोड़ा सा rowdiness है, while dove is more to do with peace and love. ठीक है ना. so हमें जब crow जब हम ये तो सिर्फ आपको एक डिफाइन करने की है कि what are denotative words and what are connotative words, but other than that it means that कि आपको जो है आपको अपने टेक्निकल राइटिंग के अंदर सिर्फ ऐसे इस्तेमाल when you write about crow, that is what you will actually be talking about a crow and nothing associated with it. ठीक है ना. Mohammad Osama wants to say something. Excuse me, ma'am. जी. Am I audible? जी. मैम जैसे कि आपने कहा कि क्रिएटिव राइटिंग और ये टेक्निकल राइटिंग दोनों में डिफरेंस है, बट मैम दोनों के ट्रेड्स एक सेम क्यों हैं? आपको मैं बताती हूँ कहाँ पे ट्रेड्स आगे as you go along. I'll tell you where there are certain areas जहाँ पे ट्रेड्स सेम है, जहाँ पे और थोड़े एरियाज में जहाँ पे ट्रेड्स सेम नहीं है. See, writing is writing, but how do you take it across is something different. ठीक है ना. तो as we go ahead वो वाली चीज उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा. ठीक है ना. अभी ये है शूज है. ठीक है ना. अब ये ओड टू अ शू, ये किसी ने जैसे पोइट्री के शेप में लिखा हुआ है कि my son's tennis shoes rest temporarily in a heap against the kitchen door, their laces soiled, their tongues hanging out like an exhausted terriers. The sole worn down on the inside from sliding into seconds are green, the shades of the summer. देखिए green को यहाँ पे explain किया हुआ है. Canvas exterior, once pristine white, are the colors of the rainbow, sun bleached and splattered rained on it, ketchup and mustard adorned, each shoe shouting a child's joyous exuberance, I'm alive. So ये जब पोइट्री या कोई एक्सप्रेशन लिखना होता है, अगर आपको कह दिया जाए कि शू के ऊपर आप एक क्रिएटिव पैराग्राफ लिख लें, in this is the shape that it is going to come out. Now जो मैन्युफैक्चरर जब टेनिस शूज बनाता है तो वो क्या लिखेगा? The D40 Slammer tennis shoes will be manufactured to the following specifications: sole, neoprene rubber 345, white enabled paint 1.589. Now this is a totally different specifications that is written about the shoe. ये आपको at a glance बता रहा है the difference between expressive writings and the difference between writing an essay and the difference between writing a technical writing. अब देख रहे हैं लेस की उन्होंने मेजरमेंट्स दी हुई हैं. 15 इंच लॉन्ग, 100% कॉटन, tongue white canvas oval slumber logo, heat pressured sealed centered 50 inches from all sides. weight बता रहे हैं. इतना स्पेसिफिक टेक्निकल राइटिंग है, specifications of a tennis shoes in contrast to an essay that you have written, that could be written. ठीक है ना. दिस इज ऑन एट अ ग्लांस आप लोगों को नजर आ रहा है कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है और ये टेक्निकल राइटिंग किस तरह से है. टेक्निकल राइटिंग आई टेल यू इज नॉट समथिंग वेरी it's not something that you read all the time. आपके हर शूज के साथ या हर कपड़ों के साथ या हर मशीन के साथ there is some technical specifications जो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, but it is an important part of anything that we manufacture.
and anything that we need to, because we have to tell people that what are the technical specifications, and this is what the kind of writing you will be expected to do. अब देखिए इन्होंने जो है इन लोगों को यहाँ पे हर पैराग्राफ में इनको सेपरेट किया हुआ है, सोल के बारे में बताया हुआ है, uppers, tongues. It is not just in a shape of a paragraph, it is more in a form of a bullet. कि आपको एक चीज one after the other, so that it is easy to read whatever you. So if you're looking at कि लेस कितना, लेस की size क्या है, you can right away see that it's 15 inches, and that is what you're going to be looking at when you're looking at technical specifications. ठीक है ना? So again, as Osama was also asking, writing के 5 components होते हैं, ठीक है ना? एक ये होता है organization of the essay. Of the writing. The essay employs topic sentences. आपका thesis होता है, paragraphs में divided होता है. Technical writing usually does not. उसके paragraphs shorter होते हैं, not like an essay, as explained in the previous example. And transitional words and phrases, essays can be replaced by enumerated lists. तो again, जैसे हमारी जो technical writing है, उसमें जो है bullet form में होता है, होती है. क्या? Okay. Grammar is important in both technical writing as well as in essays. So grammar, you have to be correct at all the time. Now, how do you develop an entire essay or a technical writing? is आप उसके अंदर examples भी डालते हैं, anecdotes भी डालते हैं, testimony भी डालते हैं, research भी डालते हैं. ये भी दोनों चीजों में important है. ठीक है ना? Style essay का longer, again as I said, it's in the forms of books, long pages. Technical writing, on the contrast, have to be short and simple. Simple paragraph, very clear, so that the reader can understand what we have written. ठीक है ना? The reader, याद रखें कि the readers of technical writing does not have the time nor necessarily interest in the subject. ठीक है ना? आप रात को या आराम से अपने leisure time में कोई भी technical manual निकाल कर नहीं पढ़ने वाले. ठीक है ना? आप किताब पढ़ेंगे, आप poetry पढ़ेंगे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे. तो style जो है, इसीलिए दोनों का बहुत मुख्तलिफ है. Document design, again. जी. मैम ये जो आप भी बताया मैम, यस मैम मैं कह रहा हूँ मैम, क्वेश्चन एक मैम, जो आपने जो अभी आपने ये पिछली स्लाइड दिखाई, उससे मतलब मुझे जो समझ आया वो ये कि ऐसे राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग दोनों एक अलग-अलग चीजें हैं. जी. ये आप कहना चाह रहे थे? अच्छा, तो मैम अगर मेरा कोई मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे कहते हैं कि आपने एक इफेक्टिव ऐसे लिखना है, तो मेरे पास अगर टेक्निकल राइटिंग की स्किल्स होंगी तो मैं अपना ऐसे कंप्लीट कर सकूंगा ना? तो फिर ये मैम डिफरेंट कैसे होगी चीजें? ये सवाल. देखें, ऐसे लिखने का मकसद है, आप जैसे अभी कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, तो ऐसे लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो है कहानी लिखनी है. कहानी के अंदर जितना आप लोग उसको एक्सप्रेसिव बनाएंगे, जितना उसको उसके अंदर स्टोरीज होंगे, एडजेक्टिव्स यूज होंगे, मतलब उसको एंटरटेनिंग बनाना है. ठीक है ना? टेक्निकल राइटिंग इज नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट. टेक्निकल राइटिंग का मतलब यह है कि आपको स्पेसिफिकेशंस बनानी है. जैसे मैंने आपको ये जो एग्जांपल है कि एक शू के बारे में अगर आपको कहे कि कोई ऐसे लिखें, तो आप उसको लिखेंगे उसका कलर क्या है, उसकी यूज क्या है, उसके ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है सन ब्लीच, मड स्प्लैटर्ड, रेन्ड ऑन, केचअप एंड मस्टर्ड अडॉर्न्ड. ये सारी चीजें जो है ना, आप अपने शू के बारे में लिखेंगे. लेकिन जो टेक्निकल राइटिंग है वो यही कहेगा कि उसकी साइज क्या है, उसकी लेस की साइज क्या है, उसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है. All of that stuff is very different. It has to be very specific. ठीक है ना? तो आपको जब अभी आपको ऐसे सिखाया जाता है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आप जब that helps you into writing technical writing, जब आप ऑफिसेस में आएंगे तब आप यहाँ पे बैठकर टेक्निकल आप एसेज नहीं लिखेंगे, आपको टेक्निकल राइटिंग करनी होगी. तो आपने जो अभी तक जो सीखा है उसमें से आपको जो एडजेक्टिव्स हैं, जो आपको ऐसे राइटिंग है, उसके थोड़े पार्ट्स निकाल कर अपनी टेक्निकल राइटिंग करनी होगी. एंड दैट इज द शिफ्ट दैट वी नीड टू काइंड ऑफ सी, दैट आप लोग जब ऑफिसेस में आए तब आप लोग ये शिफ्ट लेकर आए. ईमेल अगर किसी को लिखनी है तो उसमें कहानी नहीं होनी चाहिए, उसमें मैसेज अक्रॉस होना बहुत जरूरी है. ठीक है ना?
I hope that makes it clear. यस मैम, लिटिल बिट। मैम ये आप कह रही है ना कि ईमेल में कहानी नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन एक ओवरव्यू देना तो जरूरी है ना। अक्सर हम ईमेल कर देते हैं, सामने वाला बंदा कहता है कि मुझे तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ईमेल किया हुआ है। तो जी जी, कॉन्टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल एक आगे बताती हूँ, जस्ट हैंग इन देयर विद मी। आगे मैंने 2 डिफरेंट टाइप के लेटर्स लिखे हुए हैं, तो उसका आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमें एक तो बहुत क्लियर नहीं होता, और एक ही होता है कि आपको किस तरह से क्लैरिटी करनी है। लंबा हो सकता है लेकिन इट हैज टू बी क्लियर एंड द मैसेज हैज टू बी सेट अक्रॉस। हम लिख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, काइंडली डू दिस, काइंडली कंप्लीट दिस इंटायर प्रेजेंटेशन इन एंड गिव इट बैक टू मी। उसमें ना लिखा हुआ है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन किसके लिए है, टाइमलाइंस नहीं लिखी हुई है। तो वो सारी चीजें टेक्निकल राइटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो ये मैं आपको और आगे बताती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा लेट्स जस्ट गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। मैम एक सवाल बस, फिर आप स्टार्ट कर लीजिएगा। मैम आपको नहीं लगता अगर एक हमने आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी किसी के साथ तो उसे मतलब समझ ना लगे, लेकिन अगर हम कुछ एंटरटेनिंग वे में अगर उससे बात करें तो वो इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ेगा भी और मतलब उसे इम्प्रेस भी होगा। यानी कि अगर हम उसमें इमोशंस वगैरह डाल के देते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके लिए जो रीडर होगा। इसके बारे में आपने कहा कि इमोशन यूज नहीं करने, जो मतलब आपने पहले वो कनोटेशन और डिनोटेशन वाली बात की। अच्छा, आपने जो है ना सपोजिंग एक मशीन खरीदी, ठीक है ना, आपने एयर कंडीशन या आपने जो है एक फर्नीचर खरीदा जिसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको जो है ना उसको मतलब आप उसको डिफरेंट पार्ट्स हैं, और आपको जो है ना उसके अंदर एक यूजर मैनुअल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अभी अगर वो फनी होगा और उसके अंदर इमोशंस होंगे, वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए ना, कि मुझे फर्स्ट जो है इसका बेस इससे अटैच करना है, और फिर हमें जो है इसकी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई इस तरह से कोई डिवाइसेस खरीदी हो कि जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी लेगो है या कोई ऐसी गेम्स है जिसके अंदर आपको कोई मैन्युफैक्चर करनी है कोई चीज, अगर उसमें मज़ाहिया चीजें हो रही हैं और उसके अंदर, तो दैट आपका मैसेज अक्रॉस नहीं होगा, वो पता नहीं क्या चीज बनकर सामने आएगी, ठीक है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर मैन्युफैक्चर जैसे आपके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेसेस अगर आपने फॉलो नहीं किया, आपने एक स्टेप भी बीच में छोड़ दिया तो आपकी वो चीज बनेगी नहीं जिस तरह से आपको बनानी है। आप समझ रहे हैं बात। तो ये वाली जो चीज है ना, तो इसके अंदर आप अगर इसके अंदर डाल देंगे कि अच्छा ठीक है ये यूं नहीं करें और यूं करके देख लें, तो इसमें आप वो नहीं करें। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टेक्निकल राइटिंग जो है ना, वो आप जो बात कर रहे हैं ना कि अच्छा ठीक है किसी को सिखाने के लिए आप जो है इसको मज़ाहिया तौर पे कर दें, एवरीथिंग दैट इट कम्स इनटू योर वर्बल कन्वर्सेशन। बट अगर आपको कोई चीज कोई गाइडलाइंस फॉलो करनी है तो इट हैज टू बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस व्हिच इज डिफाइंड इन सच अ वे कि आप लोगों को मैसेज भी एक समझ में आ जाए और उसमें कोई और चीज नहीं हो, वरना बंदा तो घूमता ही रहेगा जब कोई चीज वो बना रहा होगा, ठीक है ना। कि आप कोई चीज ले लें, फोन जैसा अगर नया फोन लेते हैं हम तो उसके अंदर देखते हैं कि अच्छा ठीक है इसके अंदर इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं क्या हैं। अगर वो चीज बहुत ही मज़ाहिया तौर पे अगर आ जाएगी तो पढ़ने के लिए तो चले ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको उसको एक्चुअली इस्तेमाल करने में किस तरह से उसको करना है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी वेरी कंसाइज हाउ यू राइट दोज स्पेसिफिकेशंस एंड गाइडलाइंस, ठीक है। मैम वो मैं इसलिए ये बात कर रहा था ना, वो ठीक है आपकी बात सही है कि मतलब किस चीज के अगर फॉलो करना है किसी की, अगर आप जैसे मिसाल आपने दी कि फर्नीचर को आप जोड़ना, वो तो जाहिर सी बात है हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तभी वो बनेगा ना। लेकिन मैम मैं राइटिंग की बात कर रहा था कि अक्सर मैंने ना देखा है खुद भी ना, अब हमारी यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटीज है ना उसकी मेल्स वगैरह आती हैं या स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस से मेल्स वगैरह आती हैं तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बात पढ़ते नहीं ना उससे। लेकिन जब वो एन कैम की कोई मेल आती है तो उसमें पता होता है इसमें ना मेल में आपको शशके वगैरह लिखे होंगे, मतलब उनके ना जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना शशके वगैरह उस तरह की वो मतलब मेल्स टाइप होती है ना, तो वो सारे बंदे वो पढ़ते भी हैं उसे। तो मैं ये कह रहा था आप सही कि कह रहे हैं।
आप जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं कि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमें लोगों को पढ़ानी है। टेक्निकल राइटिंग जो है ना वो जब मैनुअल यूजर गाइड है ना तब आप उसी वक्त निकाल कर पढ़ेंगे जब आपको एक्चुअली उसको पढ़ना होगा, जब आप कहीं फंसे हुए हैं और आपको पढ़ना है। देयर इज अ डिफरेंस। आप स्टोरी आप इस तरह से नहीं करें, ठीक है। अभी कभी कभी ये होता है कि आपको कोई कम्युनिकेशंस जो सेंड आउट करनी होती है तो आप उसको किस तरह से करेंगे, ग्राफिकल, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लेकिन आपका उसमें भी मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जब आप ग्राफिकल उसको अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर कलर्स पॉप आउट हो रहे हो, लेकिन आपका मैसेज, सपोजिंग आपको जो है करना है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव है कि लोग आकर उसको पढ़ें, आप उसको नो डाउट आप उसको मेक इट इनटू अ फॉर्म दैट इज वेरी ग्राफिकल और उसमें आपका मैसेज है, लेकिन उसके अंदर ये डालना बहुत जरूरी है कि कितने बजे है ड्राइव, कब से कब है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो तो आपको वो वाला पार्ट इज कॉल्ड टेक्निकल राइटिंग। जी ठीक है ना। तो आपको वो वाली चीज तो वैसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन इन ऑर्डर टू कैच अटेंशन आपको क्या करना होगा, आपको हर जगह ये क्या कहते हैं पैम्फलेट्स बांटने होंगे, आपको ईमेल करनी होगी, आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। तो एडवर्टाइजमेंट इज पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग। इट कैन बी कि आप जो है अपना मैसेज, लेकिन आप मैसेज के ऊपर ट्विस्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है आप 2 बजे का टाइम है लेकिन आप 3 बजे आना, आप ये लिखेंगे तो क्या होगा। It has to be very proper. This campaign is between this and this time, and you are supposed to come, between this time. वरना वो miss हो जाएगा उनको। तो आपकी जो है communication has to be very clear in that. Graphics, colors आप जरूर use कर सकते हैं. There is no in order to catch their attention. ठीक है ना, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप उसको बिल्कुल ही कोई मजाया तौर पे उसको कर दें। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये अगेन वी आर जस्ट इट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन टेक्निकल राइटिंग्स। तो डेवलपमेंट आप जो करेंगे जिसके अंदर आप एग्जांपल। जी अच्छा मैम, मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ डिग्री के, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ईमेल की जाए एडमिशन के लिए ना, एडमिशन के हवाले से। तो अब हमें मतलब जैसे हमें पता है कि कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ फॉर्मेट के डिफरेंसेस होते हैं जब आप मूव कर रहे होते हैं जियोग्राफिकली ना। तो मतलब अक्सर मेरा ये मुझे डर होता है कि मैं जो रिसिपिएंट है वो ऑफेंड ना हो जाए, मैं कुछ इस तरह ईमेल में लिख दूं। मेरी इंटेंशन तो वैसी नहीं होगी टू ऑफेंड समबडी, बट इट माइट हैपन। तो मैं इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, पोटेंशियल अगर ऐसी कोई चीज है। देखिए, जब आप जनरली अप्लाई करते हैं तो आप अपने बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में, जैसे कवर लेटर्स बनते हैं, आपने कभी कवर लेटर्स बनाए हैं फॉर विद योर सीवी? जी मैम, बनाए हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसी क्या चीज आपको, एक तो देखिए दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को कुछ भी लिख रहे हैं तो ऐसी चीज तो लिखनी नहीं चाहिए जिससे वो सामने वाला ऑफेंड हो जाए। लेकिन आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना, अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं कि ठीक है दिस इज द रीजन आई वांट टू अप्लाई और ये दिस इज अबाउट मी, तो इसके अंदर आप अपने बारे में लिखेंगे और ऐसी चीजें लिखेंगे जो आपकी फैक्चुअल होगी, ठीक है ना। समथिंग दैट यू वांट टू डू, और वो वाली चीजें आप उसके अंदर जो है ना कम से कम लिखेंगे आपको, क्योंकि यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आप खुद प्रोडक्ट है और आप चाह रहे हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, राइट? इज दैट व्हाट यू लुकिंग फॉर, उमर? एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर आपको जो है ना अपने बारे में फैक्चुअल, तो उसका जो राइटिंग स्किल्स है उसमें काफी हद तक आपको टेक्निकल राइटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। एंड वो मैं आपको आगे चलकर समझाती हूँ कि किस तरह से टेक्निकल राइटिंग के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इवन जो आपकी सीवी होती है जो बनती है, इसमें आप बिल्कुल बुलेट फॉर्म में आप सिर्फ अपना फैक्ट्स डालते हैं कि एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप की जो है आपने अगर कोई स्किल्स और अटेन की हैं वो हम अलग से उसको बताते हैं। फिर हम ये भी बताते हैं कि इसके अंदर आपकी कोई हॉबीज हैं तो वो हम एक आध दो डाल देते हैं, बट इट इज जस्ट वन लाइन। ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है इफ आई लाइक टू डू हॉर्स राइडिंग तो आई लाइक टू राइड ऑन अ ब्लैक हॉर्स, ये सारा नहीं होता। इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी कंसाइज।
तो इसी तरह से वो बनता है कि सामने वाले को जो ना दे आर इंटरेस्टेड, दे डोंट हैव टाइम टू ऑल्सो रीड अबाउट यू सो मच। उनके पास इतनी सारी जब एप्लीकेशंस आती हैं तो उनको 2-3 चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वो हाईलाइट करती हैं। तो अगर आपने अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होंगी तो उसमें अगर सपोजिंग 5 चीजें थी कि हमें एक बंदा चाहिए जो हाईली स्किल्ड इन कंप्यूटर्स हो और जो जिसका 5-6 साल वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप जो है वो चीजों को अपनी रेज्यूमे में और अपने कवरिंग लेटर के अंदर हाईलाइट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अपने आप को सेल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट जॉब और इन ऑर्डर टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। तो इसको बहुत जरूरी है कि अपनी पोटेंशियल्स और अपनी अच्छी चीजों को हाईलाइट करें एंड स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट वुड ऑफेंड एनीबडी एल्स। वो ऑफेंड करेंगे तो वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, क्योंकि एक बंदा है उसके पास 100 एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो आपको क्यों अलग से चूज करे। तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी जो है टेक्निकल राइटिंग स्किल्स बहुत ही प्रिमो प्रिसाइज हो और ऐसी हो कि वो सामने वाले को बिल्कुल नजर आ जाए कि ठीक है हम ये चीजें ढूंढ रहे हैं, 5 चीजें, इसमें से ये 3 चीजें इस बंदे के पास हैं, आपकी जो है वो एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ दैट मेक्स क्लियर। फरहान हैज रेज्ड हिज हैंड। मैम अगर हमने किसी को कन्विंस करना हो चाहे जॉब के लिए जिस भी वजह के लिए, तो हमें इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, सही कह रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे आपके दिमाग में? हम किस तरह अपने इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन को किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं, अपने किस तरह किसी को कन्विंस कर सकते हैं इस बारे में? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज जाती है? अभी तो आपने तो सिर्फ एक एड देखी है, लिंक्डइन पे देखी होगी, आपने जो है न्यूज़पेपर में देखी होगी और आपने अप्लाई किया। आप अभी तो आपका तो बज़ाहिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है विद द पर्सन हु इज टेकिंग यू फॉर अ जॉब, ठीक है ना? आपका क्या गया है, आपकी रेज्यूमे क्या है, जो आपकी सीवी है वो जाती है, और आपका कहीं कहीं आपका कवरिंग लेटर जाता है। जब किसी के पास जब जॉब एप्लीकेशंस जाती है ना, तो उसके पास एक नहीं जाती है, उसके पास कोई 10, मतलब उसके पास 100 के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशंस जारी होती हैं। वो जब रेज्यूमे देखता है ना, तो एक तो जो उसका राइटिंग स्किल्स है ना, जो आपकी पूरी सीवी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपने जो स्किल सेट्स हैं वो आप किस तरह से उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना? ज्यादातर अगर आपकी जीपीए बहुत अच्छी है तो आप अपनी जो है जीपीओ को हाईलाइट करेंगे कि अच्छा ठीक है मेरे ये मार्क्स हैं और मुझे ये मिला हुआ है, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट इनिशियली। उसके बाद जो है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, आपने किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप लोग करते हैं अपनी कॉलेजेस में, उसको हाईलाइट करें। एक पेज पे हो कि जो पढ़ने वाला है ना वो बोर नहीं हो जाए आपकी सीवी देखकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो आप लोगों को बिल्कुल ही कॉलेज स्टेज में ना, तो आप लोगों का इतना ज्यादा है नहीं, बट जो चीजें हो वो प्रोमिनेंट हो और हाईलाइटेड हो, वो बहुत जरूरी है। तो हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स को पहले पढ़ें और उसमें अपनी चीजें देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको हाईलाइट करके भेजें कि ये चीज मैंने की भी है। ठीक है ना? कि जो पढ़ने वाला है ना वो आपकी सीवी को 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, ठीक है ना? जब 100 सीवीज उसके सामने पड़ी होगी ना, तो वो एट अ क्विक ग्लांस उसको नजर आ जाना चाहिए। लेकिन मैम अगर हम मतलब ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे फाइवर हो गया, वर्क हो गया, जैसे क्या हो गया, सॉरी? फाइवर हो गया, फाइवर या वर्क, हम अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमारे क्लाइंट्स के पास हजारों हम एप्लीकेंट होंगे, हमारे हजारों वो काम करने वाले होंगे जिस तरह हम काम कर रहे होंगे। जी जी। तो हम उसको किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि वो सिर्फ हमें ही चूज करे उस स्पेसिफिक काम के लिए, कि वो मुझसे काम कराए? उसको मैं किस तरह कन्विंस कर सकता हूँ? मैं वही कह रही हूँ कि आपकी सीवी जो है ना वो बाकी सब लोगों से हटकर होनी चाहिए। देखिए काम तो ज्यादातर वही कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सीवी का जो फॉर्मेट है किस तरह से है, इसको जरा एक्सप्लोर करें कि किस तरह से बेस्ट सीवीज होती है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, सीवी का कंसाइज होना बहुत जरूरी है। मैं वही कह रही हूँ कि ऐसी नहीं हो कि बहुत ही लंबा चौड़ा हो। अच्छा, इसके अंदर फिर अगेन ये हो कि एक बंदे का अगर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ज्यादा मिलेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आप लोगों के अच्छा कभी कभी आपके जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी है, कि अगर सपोजिंग आपने काम किया हुआ है और आपके प्रोफेसर ने कहा हुआ है या आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर उन्होंने कहा हुआ है कि ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसको अटैच करें, उसको अपने अपने कवरिंग लेटर में डालें कि कोट करके कि ये चीज वो कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ना मैटर करती हैं कि वो स्टैंड आउट कर जाती है सीरीज। ठीक है, सही है मैम, थैंक यू। ओके।
So again, ये वाली जो चीजें हैं ये वही है comparison between technical writing and essays. इसको I think we are not going to repeat it. लेकिन सिर्फ एक जो चीजें कह रही हूँ कि grammar ऐसे लिख रहे हो या technical writing कर रहे हो दोनों में बहुत important है. Development that means आपको examples use करने हैं, testimonies use करनी है, data, research work वो भी दोनों में बहुत जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें आपका पैराग्राफिंग हो हेडिंग हो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है लेकिन जो स्टाइल है राइटिंग का जो मुझे किसी ने पहले भी जो सवाल पूछा था कि आपका जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है ऐसे का स्टाइल और टेक्निकल राइटिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है वो इस तरह से है कि आपका ऐसे इज लॉन्ग और जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं व्हाइल एज टेक्निकल राइटिंग इज शॉर्ट और शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स और डॉक्यूमेंट डिजाइन भी दोनों का डिफरेंट है यहाँ पे जो टेक्निकल राइटिंग है आप उसको हाईलाइटिंग हेडिंग सब हेडिंग्स बुलेट फॉर्म में यूज करेंगे और एसेस के अंदर ज्यादातर पैराग्राफ फॉर्म्स में होता है सो अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट देख लें बिटवीन ऑल द एसेस दैट यू बीन राइटिंग एंड जो टेक्निकल स्टाइल्स हैं उन दोनों में ये फर्क है तो फर्क आपका आता है स्टाइल में और डॉक्यूमेंट डिजाइन में ठीक है अभी ये एक एग्जांपल है कि इट्स योर नेफ्यूज बर्थडे या किसी का भी बर्थडे है एंड यू बॉट अ ट्रेन सेट फॉर हिम to assemble this present you are sitting on the floor you have been sitting there for 2 hours as you're aching back a test you're trying to read the complicated instructions which accompany the toy these instructions are a typical technical writing you do not enjoy the activity in fact you just want to end the task and go to sleep this is a typical technical writing situation The same holds true when you read an instruction to install a software, build a cabinet, tiles lay karni hai or any other task. People do not read technical writing such as instructions for pleasure. Their writing is a means to an end. Thus, to help people accomplish the task as quickly, as efficiently as possible, the writing skills should be concise. That means short words, short sentences, and short paragraphs. तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता है कि जब हम टेक्निकल राइटिंग करते हैं जब कोई प्रोसीजरल मैनुअल्स लिखते हैं तो इट हैज टू बी शॉर्ट एंड कंसाइज ये कोई हैप्पी रीडिंग आवर नहीं है ये आप लोगों का चलें एक दो सवाल हम पूछते हैं देखते हैं कि कुछ समझ में आया कि नहीं जी हमजा मैम मेरा एक सवाल है आवाज मेरी आ रही है सही तरीके से सॉरी एम आई ऑडिबल मैम जी एम आई ऑडिबल मैम मेरा एक सवाल है अभी आपने बोला कि आप जो मेरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल प्रिसाइज या कंसाइज होना चाहिए तो मैम इसके बाद जो मेरा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए तो और इसके अलावा मुझे अपने रीडर को क्लैरिफाई भी करना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर मैं क्लैरिफाई करता हूँ और अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तरीके से कन्वे करता हूँ तो मैम किस तरह से कंसाइज या वो प्रिसाइज रह सकता है देखिए एक तो है कि कंसाइज जो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि आपका जब आप कन्वे कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए मतलब मैं आपको आगे वो बताती हूँ कि जैसे आपको सेंटेंसेस के साथ मैं ये आगे कवर करती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक चीजें आपको कन्वे करनी है तो इसका ये नहीं मतलब है कि हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात करें बहुत ही क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि हम जो आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके जो राइटअप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट हो और ये मैं आपको आगे जो है ना आगे मैं आपको समझाती हूँ कि वो किस तरह से होगा just bear with me after this थोड़ा बहुत let's just break out for this और उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ कि कहाँ किस तरह से इसको लेकर चलेंगे ठीक है ना तो अगर मुझे कोई बता दें कि how does technical writing differ from essays at least 3 ways कोई बता सकता है टेक्निकल राइटिंग और essays क्या डिफरेंस है मैम फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि जो एसेज वगैरह या जो भी दूसरी राइटिंग होती है उसमें हम पोएटिक या ऐसे टाइप की कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इमोशंस को इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन टेक्निकल राइटिंग जो है उसको ये पोएट्री वगैरह इन सारी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट होती है और हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है सेकंड होता है इसकी लिमिट जो होती है तो टेक्निकल राइटिंग को बिल्कुल कंसाइजली लिखना पड़ता है टू द पॉइंट होनी चाहिए सारी चीज़ और इसकी कुछ भी हो सकती है बाकी राइटिंग जो भी होती है इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है और थर्ड जो चीज़ है मतलब एक डिफरेंस मैंने पहले पढ़ा हुआ था कि
जो टेक्निकल राइटिंग है इसका जो हमारा मकसद होता है किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता है, जस्ट हमें कन्वे करना होता है एक मैसेज। सही है जी, बाकी राइटिंग का यही होता है ना कि हम पोएट्री या जो भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो भी चीज़ होती है, लेकिन टेक्निकल राइटिंग वैसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सही है, आपको मैसेज कम्युनिकेट करना है, हमें कोई उसके अंदर कोई आगे डिटेल उसके अंदर नहीं डालनी होती है। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट हुजैर। अच्छा, टेक्निकल राइटिंग के अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई एग्जांपल्स दे दें, हमने 2-3 चीज़ों की बात, मैं प्रोसीजरल मैनुअल्स की बात कर रही हूँ, उसके अलावा टेक्निकल राइटिंग किस शेप में आ सकती है? एनीबडी? मैम सीवीज की फॉर्म में, रेज्यूमेस वगैरह, कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, यस, इस तरह की चीजें। जी, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जब आपकी जॉब आती हैं, लिंक्डइन पे आती हैं या आपके न्यूज़पेपर में आती हैं, तो वो इतनी कंसाइज और इतनी टू द पॉइंट होती है कि आपके उसके अंदर जो है, मतलब इट जस्ट सेंड्स यू द मैसेज, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल राइटिंग। चले, वेरी गुड, चलो, आई एम ग्लैड। मैम एक क्वेश्चन है थोड़ा इससे, मादा पूछने। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको इससे बात लेती हूँ, कोई और कुछ कह रहा है? Who's talking? एमन आप पूछ लें। ओके, आई जस्ट हैड अ लिटिल क्वेश्चन कि हमारा जो मार्केटिंग कंटेंट होता है, इज इट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग? Yes, it is. It is part of technical writing. But we have to convince people in marketing content. It is supposed to be very attractive also. जो लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकल राइटिंग का अभी तक मुझे समझ आया है, इट्स जस्ट अबाउट डेटाबेस थिंग्स। नहीं, देखें, जो आपकी मार्केटिंग जो होती है ना, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, देखें एडवर्टाइजमेंट्स जो आपकी टीवी पे लगती हैं, जो उसका जो राइटिंग कंटेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी और दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ, क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, लेकिन उसके जो बाकी जो लाइंस होती है ना कि आपको कि प्रोडक्ट में क्या है, जैसे आपका कि इसके अंदर सपोजिंग आप बिस्किट बेच रही हैं, ठीक है ना, बिस्किट की एड इज गोना बी वेरी डिफरेंट। बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे उसके साथ बाद में बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, देन दे गेट द एनर्जी इन फ्रॉम इट। लेकिन आपका जो उसके रैपर के ऊपर जो चीजें होंगी ना, जैसे आप उसके अंदर कार्ब्स कितनी है, उसका पूरा कैलोरी काउंट कितना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुई हुई है, उसमें वो ISO सर्टिफाइड है कि नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग। Whereas जो आपका मार्केटिंग का जो ये वाला एलिमेंट है कि हाउ टू सेल इट, एंड जो आपकी एड्स हैं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग एंड क्रिएटिविटी, एंड वो डिफरेंट पार्ट हो जाता है। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन यस यू नीड बोथ द थिंग्स, लेकिन अगर आप एड बिजनेस में हैं तो फिर वहां पे आपको टेक्निकल राइटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल राइटिंग की आपको वहां पे जरूरत है जहां पे आप बस एक कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वी हैव अ मीटिंग सेट एट 5 o'clock this date this time, वो सारी चीजें टेक्निकल राइटिंग में आएंगी। ठीक है, सो या दैट्स अ वेरी गुड डिफरेंशिएशन बिटवीन वेयर वी कैन, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस एरिया में हैं जहाँ पे मार्केटिंग और सब हो रही है, तो उसमें आपका एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग आ जाएगा, whereas आपका मतलब वहाँ और बाकी ये चीजों के अंदर टेक्निकल राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आई मेक दैट क्लियर। या थैंक यू, आई गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैम, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। अगर हम कंपेयर करें ना, जो हम डेली लाइफ में हम जो टेक्निकल राइटिंग कर रहे होते हैं, इफ कंपेयर टू व्हाट वी रीड इन न्यूज़पेपर्स ना, जो हेडलाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज होती हैं। तो जो न्यूज़पेपर्स में लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो किस कैटेगरी में आती है? क्या वो सेम एज अदर कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग है या वो डिफरेंट है? So न्यूज़पेपर जो है ना, जो जर्नलिज्म के अंदर जो है, there is again two different types, जैसे इसमें भी पूछा है, मैंने भी पूछा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं कि ठीक है आज की ये स्टोरी है, वो उसके अंदर दोनों एलिमेंट शामिल है, टेक्निकल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट उसका राइटिंग स्टाइल अगर आप देखें ना, पैराग्राफ फॉर्म में होता है, उसके अंदर काफी चीजें ये होती हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, तो उसके अंदर दैट इज डिफरेंट
फ्रॉम टेक्निकल राइटिंग, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग इससे भी ज्यादा कंसाइज होता है। तो जो मैंने कहा था कि एक ही न्यूज़पेपर आप देखें, उसके अंदर अगर किसी की ऑब्चुरी होगी या उसके अंदर अगर किसी की एड प्लेसमेंट होगी कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ या ये एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीजें टेक्निकल राइटिंग है। लेकिन अगर कोई कहानी है, जैसे कि आज का इवेंट ये हुआ, पॉलिटिकल इवेंट ये हुआ, ये चीजें होती है, तो उसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज स्टिल अ स्टोरी। तो स्टोरी जहां पे आ जाती है तो वो ऐसे के फॉर्म पे आती है, वो टेक्निकल राइटिंग नहीं होती है। ठीक है ना? तो कभी कभी यस, इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी आपको जो है कहीं कहीं आपको स्टोरीज भी बतानी होती है, बट दैट इज वेरी लिमिटेड। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा। तो जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड विद फैक्ट्स। So it doesn't have fictional characters and it doesn't have ऐसी कोई ड्रामाबाजी नहीं होती है उसके अंदर, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो स्टिल अ स्टोरी। तो वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा, उसमें ना आप कोई हेडिंग्स डालेंगे, ना बुलेट फॉर्म में कोई चीज होगी, तो वो डिफरेंट है अगेन फ्रॉम टेक्निकल राइटिंग। तो ये शुरू में भी मैंने आपको, इफ आई कैन जस्ट टेक यू बैक, ये देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ राइटिंग के अंदर है ना, जर्नलिज्म आ रहा है, जिसके अंदर एग्जांपल्स है न्यूज स्टोरीज, फीचर एडिटोरियल्स। तो ऑब्जेक्टिव राइटिंग होती है रिटन फ्रॉम फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा बहुत कॉनोटेटिव एंड मोर डिनोटेटिव वर्ड्स दोनों होते हैं। सो इट इज इन बिटवीन बोथ। ठीक है ना? तो और यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग जो है, इसमें ये मेमोज और लेटर्स के फॉर्म में होता है, ये जरा गलत आ गया है, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिनोटेटिव वर्ड्स होते हैं टेक्निकल राइटिंग के अंदर। ठीक है? चलें, हमने एग्जांपल्स तो कर लिया था कि एग्जांपल्स क्या हैं टेक्निकल राइटिंग के और इसके। सो अगेन एज आई एक्सप्लेन्ड, न्यूज़पेपर्स में जो है आपका एड प्लेसमेंट जो है वो टेक्निकल राइटिंग है, जो स्टोरीज हैं वो टेक्निकल राइटिंग नहीं है। जो आपके मार्केटिंग के अंदर भी जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो टेक्निकल राइटिंग होती हैं, लेकिन ये जो आपकी एड्स होती हैं वो टेक्निकल राइटिंग नहीं होती है। इसी तरह से आपकी जो सीवी है वो टेक्निकल राइटिंग है, whereas you know when you go into an interview that is totally different। तो उसमें आपका एसेज और हो सकता है, बिकॉज कभी कभी आपको इंटरव्यूज के दौरान भी पूछते हैं कि आप एक ऐसे लिखें, तो वो ऐसे will not be technical writing, that will actually be because they want to assess your writing skills। writing skills को assess करने के लिए it is very important that we look at your essay writing and not your technical writing at that point in time। but the time you enter the organization, आपकी टेक्निकल राइटिंग तब से शुरू हो जाएगी। आपका मेजर काम, जैसे यही मैं शुरू में भी कहा था, 20% ऑफ का काम ये होगा कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को करनी है, एंड हाउ यू डू दैट, दैट कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग। तो ये हमारे 5 ट्रेड्स हैं। जी सॉरी, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मेरे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट वो स्कैटर्ड थॉट्स आ रही हैं बार बार। असल में मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, शायद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। मतलब हम देखते हैं कि कुछ राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं ना, जिस तरह हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, एपीए फॉर्मेट वगैरह जो भी होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो हमें जब रिसर्च मेथड पढ़ाया जा रहा होता है तो इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है, बजाय इसके कि जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है, उसको ये बताया जाए कि आपने बेसिकली रिसर्च मतलब उसका जो वर्ल्ड व्यू है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो सही तरीके से मैं समझता हूँ कि नहीं सिखाई जाती, और उसके जो टेक्निकल पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। इसलिए मेरे जो क्लास फेलोज हैं, मतलब मैं जिन लोगों को जानता हूँ, वो रिसर्च को इस वजह से भी अच्छा नहीं समझते। तो इतनी मतलब क्या ज़रूरत है कि इस फॉर्मेट को ही आपने फॉलो करना है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती आ गई है तो मतलब आपकी सारी मेहनत ज़ाया कर दी जाती है। तो शायद आई होप कि मैंने अपनी बात को सही तरीके से आर्टिकुलेट की है। तो दैट्स इट। देखिए, कम्युनिकेशन वेदर वर्बल हो या रिटन हो, मकसद क्या है उसका कि
हम जो है अपनी बात सामने वाले पे द अदर पर्सन को समझ में भी आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं, और उसको जो है मतलब कोई क्लैरिटी हो कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से। काफी दफा ये होता है कि हम हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे अगर सपोजिंग आप मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर बिस्किट का आप पैकेजिंग देखेंगे तो उसके ऊपर कैलोरी काउंट होता है। वो एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है कि आपको ये इसी तरह से लिखना है। अगर आपको डिफरेंट तरीके से, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन वो इस तरह से है कि उसको एक चीज इसी तरह से पढ़ने की आदत हो गई है, तो हमें वो चीजें, थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी पार्ट आ जाता है इसके अंदर कि जब सामने वाला जब पढ़ रहा होता है ना, उसका एक ब्रेन यूज्ड टू है लुकिंग एट थिंग्स इन अ सर्टेन वे। इसलिए रिसर्च पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू राइट, आई वुड थिंक, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा रिसर्च टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफरेंट होती हैं उसके अंदर, और बहुत ही एक मोनोटोनस रीडिंग होता है। इट इज नॉट अ हैप्पी रीड इन अ लॉट ऑफ केसेस, अनलेस इट इज अ टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल रिसर्च कर दिया हो तो फॉर अ लेमैन दे वुड नॉट रीड इट। मैं कभी कभी इंटरनेट पे देखती भी हूँ, या आईटी रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है टू काइंड ऑफ रीड देम, बिकॉज इट इज सो मोनोटोनस। बट द पर्सन हु इज एक्चुअली इंटरेस्ट जिसको कर रहा है वो डिफरेंट होता है। तो आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से कि अगर हम डिफरेंट तरीके से लिखें तो शायद हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल राइटिंग का, या हम आपके यूजर्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर टेक्निकल रीडर का राइटिंग का जो रीडर है ना, वो बहुत ही डिफरेंट यूजर है कंपेयर टू योर हैप्पी योर नॉवेल्स एंड ये, क्योंकि हमारा एक आप करते हैं एज अ हॉबी, एक आप कहते हैं करते हैं एज पर इंटरेस्ट, और टेक्निकल राइटिंग जो है ना आप करते हैं फॉर दोज पीपल हु डोंट इवन लाइक टू रीड, या बट वो उनके लिए इस तरह से, इसलिए वो कंसाइज होना बहुत जरूरी है इन टेक्निकल राइटिंग। नाउ रिसर्च इज नॉट समथिंग दैट, जो आपका जो रिसर्च का जो है, आप कोई टॉपिक दे सकते हैं किस चीज के ऊपर आप रिसर्च वर्क के ऊपर बात कर रहे थे? आप लोगों को किस टाइप का रिसर्च के ऊपर लिखना होता है? उमर, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज है, या मतलब जैसे आपने भी एग्जांपल दी है मेडिकल जी, तो मार्केटिंग पे जैसे लिखना है तो वो जो है ना आपका, उसका पढ़ने वाला जो है ना उसका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू काइंड ऑफ फॉलो द फॉर्मेट मोर और लेस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज समथिंग दैट वो इतना ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्रिएटिविटी का एंगल जो है ना उसमें से निकाल देते हैं। बट दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपकी स्कूल एंड इसका पार्ट होगा, सो आई डोंट वांट टू रियली कमेंट ऑन इट। लेकिन राइटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, स्पेशली जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है। बट टेक्निकल राइटिंग को आपको वही, इसीलिए इसको डिफरेंट रखना है, क्योंकि इसका जो है ना मैसेज इसके अंदर to kind of deliver the message, it is very important that आपकी जो है वो writing skills follow a certain pattern, वरना जो है ना सामने वाला वो पढ़ नहीं पाएगा ना उसको समझ में आएगा। तो आपका एक रीडिंग की जो है वो एक, हमारा माइंड जो है ना एक यूज्ड टू है रीडिंग इट इन अ सर्टेन वे। So I think that is why I think that it is important to kind of follow a certain format. थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी वाला पीस है ना वो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में डाला करें एंड नॉट इन टू टेक्निकल राइटिंग। ठीक है? Does that clear? जी दानिश कुछ कह रहे हैं? मैम अभी आपने पहले बताया कि जो ना एसोसिएटेड वर्ड जो होते हैं तो वो टेक्निकल राइटिंग में मतलब कि नहीं लिखने चाहिए। तो मैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जो लीड्स टू इमोशंस, हमारे मतलब कि इमोशंस की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या टेक्निकल राइटिंग या सीवीज में हमें वो अपने जो सेंटेंस होता है वो हाईलाइटेड करना चाहिए या उसमें एलिमिनेट कर देना चाहिए? अभी जैसे सपोजिंग कोई वर्क के अंदर अनाउंसमेंट करनी है कि दिस न्यू पर्सन हैज बीन प्रमोटेड into the organization, ठीक है ना? तो yes, you can use that. We are very happy to announce that the following employees have been promoted or progressed in their organization to the next level. आप उसके अंदर अगेन बुलेट फॉर्म के अंदर लोगों के नाम देंगे, उनकी नेक्स्ट जो है, जो क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो आई वुड थिंक कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं डालें। रिस्पॉन्सेज एटिकेट्स होते हैं टू राइट, thank yous, please, those are also important terminologies that are used in technical writing, especially when you're drafting an email.
तो मतलब ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. इनफैक्ट टू लॉट ऑफ टाइम्स योर रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो एक दफा रिक्वेस्ट करें, बार बार प्लीज या बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट जस्ट काइंड ऑफ and use the word thank you. So ये सारी चीजें जो है ना वो इसका ख्याल रखना चाहिए when you're really writing an email. मैं आपको अभी आगे चलकर दिखाती हूँ. अभी as we go around these 5 traits of technical writing, जिसके अंदर है clarity बहुत जरूरी है, conciseness बहुत जरूरी है, accessible document design है. इसके अंदर भी आपका जो रिसर्च वाला क्वेश्चन है इसको भी हम टेक ओवर कर लेंगे. एंड ऑडियंस रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैंने थोड़ा सा भी बात की है. एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टेक्निकल राइटिंग के ये 5 ट्रेट्स हैं. एंड एज वी गो फॉरवर्ड, चलें देखें, ये है ना, किसी ने ये मेमो लिखा है, ठीक है. मेमो के अंदर लिखा है, प्लीज प्लान टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन सेल, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज वेरी डिटेल्ड, थैंक्स. पर डेट आ गई है एक्सक्यूज मैम. जी मैम, ये मैम हाउ वी रिकॉग्नाइज ऑडियंस, ये थोड़ा बता दो. सॉरी, थोड़ा सा लाउडली बोले. मैम हाउ वी रिकॉग्नाइज द ऑडियंस, ये इसका थोड़ा बता दो. हाँ, मैं आपको एक एक स्टेप पे ले जा रही हूँ. यहाँ पे जब ऑडियंस रिकग्निशन मैं आपको डिटेल में ले जा रही हूँ इन ईच स्टेप, सो आप तब देख लीजिएगा कि हम ऑडियंस कैसे रिकग्नाइज करेंगे. ठीक है, ओके ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट क्लैरिटी फर्स्ट, कि आपका मतलब क्या है क्लैरिटी का. अगर ये हम एक कहते हैं कि प्लीज प्लान टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन सेल, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज वेरी डिटेल्ड, थैंक्स. क्या करेंगे आप इसके ऊपर? अगर आपको ये कोई ईमेल कोई डाल दे और कहे कि ये जो है ना कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है सेल पे, कंफ्यूजन है इस ईमेल में? यस मैम. ठीक है. बज़ाहिर आप अगर लिखें, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इम्प्रूव्ड सेल्स टेक्निक फॉर आवर सेल्स स्टाफ, दिस मीटिंग इज प्लान्ड फॉर March 18, 2004 इन कॉन्फ्रेंस रूम दिस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम. Our quarter sales are down by 27%. Thus, we need to help our staff accomplish the following: make new contacts, close deals more effectively, earn a 40% profit margin. Use a new multimedia presentation system to make your presentation. With your help, I know our company can get back on track. डिफरेंस देखा है आपने इसमें और इसमें? वो है तो बड़ी कंसाइज जो उन्होंने, बट क्लैरिटी बिल्कुल ही नहीं है. क्या चाह रहे हैं? प्रेजेंटेशन ऑन सेल बना दें. तो आप यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि क्यों सेल्स बनानी है. क्वार्टरली सेल्स 27% डाउन है. हमें आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर मेक न्यू कॉन्टैक्ट्स, क्लोज डील्स मोर इफेक्टिवली, अर्न 40% प्रॉफिट मार्जिन, इन सब का डिटेल आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए. आपको टाइम बता रहे हैं, आपको जगह बता रहे हैं, आपको मल्टीमीडिया का यूज का बता रहे हैं. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. जो आर्टिकुलेट जिस तरह से ये वाली प्रेजेंटेशन हुई भी है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट. And that's why it is very important. अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है except for कि with your help I know our company can get back on track, which is also trying to motivate the other person. But इसके अंदर ऐसी और कोई चीज नहीं लिखी हुई है जो factually incorrect हो. ठीक है ना? It is based on fact, it is concise, it sends the message across. So this is what we mean when we say that it has to be very clear. Now, obviously, जब आप मीटिंग, क्योंकि आप जब ये बना रहे होंगे ना, जब ये ईमेल आती है, तब इसके अंदर जो ऑब्वियस क्वेश्चंस जो है ना, वो ये है कि when the meeting, when is the meeting, where is the meeting, who's the meeting for, how much information is very detailed, how will the presentation be made, why is this meeting being held, what does the manager want to convey about sales. ये सारी चीजें उसने अपने concise document, मतलब एक clear form में इसके अंदर लिख लिया, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, and ये सारी चीजें इसने यहाँ पे डाल दी हैं. ठीक है? As we go forward, so when we talked about clarity, I think the next is conciseness. The document, the technical, it has to be concise. Now, what do we mean by concise? या paragraph पढ़ें. In order to facilitate an efficient meeting and fuel thought process prior to June 25, I want to provide you with a brief overview of discussions recently carried out at the director and manager level within the process. अच्छा, एक काम करें, आप लोग खुद ये पढ़ें, ये वाला जो पैराग्राफ है, और बताएं क्या समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है?
Ma'am, would you please zoom it out? नजर नहीं आ रहा है? जी ये ज्यादा ही कुछ lost the presentation. मैम पार्टिसिपेंट्स खुद भी जूम इन कर सकते हैं मेरे ख्याल में, होस्ट के लिए सिर्फ नहीं होता। एक मिनट, मेरी प्रेजेंटेशन कहाँ चली गई? आपको अभी क्या नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे? आप नजर आ रही हैं। मैं नजर आ रही हूँ? अच्छा, कहाँ चला गया? एक सेकंड। ये आप लोगों को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे ना, वो एक मिनट, इफ आई कैन जूम। I can't seem to be zooming in यहाँ से। आप लोग कर पा रहे हैं? यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी ये पढ़ तो लिया, कुछ समझ में आया, याद रहा क्या लिखा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ कि kind of you lost interest while reading this? यस मैम, इसका कनेक्शन नहीं बन रहा, मतलब सेंटेंस का आपस में। हाँ, मतलब कुछ नहीं, बस लिख लिया है, ठीक है, जो भी लिखना था। ठीक है ना, जब हम ऑफिसेस के अंदर इतना, हमारे देखिए ऑफिसेस के अंदर है ना, हम जब होते हैं ना तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। जब भी कोई लंबी चौड़ी ईमेल आ जाती है तो हम उसको साइड पे रखते हैं, क्योंकि जब टाइम होगा तब हम पढ़ते हैं वो वाली चीजें। ज्यादातर भी प्रेफर कि कोई चीज जो इंस्ट्रक्शंस जो हो ना वो बिल्कुल ही आपके इट इज प्रोमिनेंट एंड इट इज काइंड ऑफ मेड इजी टू रीड। ठीक है ना, तो कंसाइज करने के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसाइज, बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है लॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करें। जो चीजें जो सामने वाले को अगर समझ में नहीं आ रही है, कॉग्निजेंट है, तो उसको शॉर्टर वर्ड यूज करें। नो, आई विल एंडेवर टू डू समथिंग, तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग। डोमिसाइल क्या है, होम यूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग वर्ड्स हैं वो शॉर्ट से रिप्लेस करें। ठीक है ना। अच्छा, अदर वर्ड्स लाइक ऑब्वियसली जैसे इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, वो तो वर्ड्स शॉर्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये बाकी सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, डोंट यूज वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, बिकॉज आपको अगेन वो मैं ऑडियंस की जब बात करूंगी तब आपको वो समझ में आएगा कि उनको भी तो समझना है ना, हर बंदे को समझना है आपकी कम्युनिकेशन। जब अगेन यूजर मैनुअल बनेगा तब उसके अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड करेंगे तो फिर एक तो यूजर मैनुअल सामने होगा और उसके बाद डिक्शनरी सामने होगी और फिर बाद में हम कोई काम कर रहे होंगे। It is very important that you use very short words. दूसरी चीजें ये है कि अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ें कि in order to successfully accomplish their job functions, the team had been needing more workspace for some time now. इसको अगर आप सिर्फ लिख लें कि the team needs more workspace to do its job, कितना फर्क हो गया दोनों सेंटेंसेस में? ठीक है ना। तो one, we have to kind of use short words. The other thing is make shorter sentences. बहुत ज्यादा descriptive sentences लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज है वो, अच्छा ऐसे राइटिंग के अंदर बड़ा अच्छा होता है कि आप बहुत लंबा चौड़ा sentences लिखें, बट यहाँ पे आपका improved sentences would be that the team needs more workspace. Be direct and say what you have to say. तीसरी चीजें हैं कि why say the used car will cost a sum of $1,000. अगर ये कह दें the used car will cost $1,000, will ये the sum of करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ये हमने सिर्फ ये दो इस्तेमाल हटा दिए तो आपका जो है वो सेंटेंस कंसाइज हो गया है।
We collaborated. अच्छा, काफी दफा हम जो ना दो वर्ड्स साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे we collaborated together on the projects. Collaborated और together का दोनों का मतलब एक ही है. Just use we collaborated on the project. This is a brand new innovation. Innovation brand new ही होती है ना, तो आपको brand new डालने की जरूरत नहीं है, इसको कर दें this is an innovation. The other and alternative दोनों का मतलब एक ही है, is to eat soup. The alternative is to eat soup. तो again जो हमारे choices of words हैं, जब हम ये लिखते हैं तो उसका concise होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. तो what we've kind of learned right now is that use short words, use concise sentences, and don't use words that are being repeated in meanings. अच्छा, एक prepository word है, अभी ये देखें कि he drove at a rapid rate. इसको अगर कर दें he drove rapidly. I will see you in the near future. I will see you soon. I am in receipt of your email message requesting an increase in pay. I received your email message requesting a pay raise. हम मीनिंग अक्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सेंटेंसेस हैं हम इसको बहुत ही क्लियर कंसाइज वे में आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज द एम ऑफ टेक्निकल राइटिंग. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? यस मैम. जी मैम. Okay. So what we've learned is it has to be clear. Clarity is important. Concise is important. ठीक है ना. Although हमने पिछले वाले एग्जांपल में ये देखा था कि उसका concise तो बहुत था, 2-3 लाइनों में था, लेकिन उसके अंदर clarity बिल्कुल नहीं थी. तो दोनों का होना बहुत जरूरी है. Accessibility documentation. Now, accessible document design. Now, what does it mean? It means कि हमारा designing page structure layout क्या होगा. अभी आप again ये चीज पढ़ें. Regarding part number this, we received 541 units of wafer 3204. These were rejected. ये पूरा पढ़ें, and it is so difficult to read. ठीक है ना, factual information सारी है, लेकिन इतना difficult है इसको read करना. बज़ाहिर अगर हम ये टैबुलर फॉर्म में इसको डाल दें कि वेफर्स का नंबर क्या था, क्वांटिटी रिसीव्ड कितनी थी, एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, दोनों इंफॉर्मेशन में आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर कंसाइज समझ में आ रही है? इट्स द टैबुलर फॉर्म, राइट? सो दिस इज व्हाट इट मींस कि आपका जो स्ट्रक्चर और जो लेआउट ऐसा होना चाहिए. अब इसके अंदर यू कैन यूज थिंग्स लाइक अ टेबल, यू कैन यूज थिंग्स लाइक बुलेट फॉर्म्स and everything, but आप जो है उसको इस तरह से पोर्ट्रे करें कि सामने वाले को ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़े. Imagine reading the first paragraph that was going to take you probably 15 minutes to kind of just make sense of the entire thing rather than reading this at a glance. इसमें बज़ाहिर और ज्यादा अच्छा ये होता है कि जब आप इसके अंदर टेक्निकल ग्राफ्स भी डालते हैं, उसमें पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. So there is a difference. तो ये आपकी टेक्निकल राइटिंग आ जाती है पूरा टेक्निकल मटेरियल, फैक्चुअल है, दोनों चीजें हैं, बट इसके अंदर ये है. जी बिलाल, आप कुछ कह रहे हैं? हम स्लाइड्स मूव नहीं कर रहे हैं अभी तक. कितनी स्लाइड 20 सेकंड लगे हैं. जोर से बोलेंगे, स्लाइड्स मूव नहीं कर रहे हैं. स्लाइड मूव 20 सेकंड स्लाइड अभी 20 स्लाइड हो जी. यस मैम. कंसाइजनेस 22 स्लाइड नंबर आ रही है. स्लाइड क्या हो रही है? सॉरी, कंसाइजनेस वाली हमारे 20 सेकंड पे रुकी हुई है. अच्छा, कंसाइज ही आ रही है, अभी नहीं आई है एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट डिजाइन. नो मैम, आप अच्छा, शेयर ऑफ करके दोबारा रीशेयर करें. हां, अभी नजर आ रहा है? यस मैम. ठीक है, तो आपने देख लिया. आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ें जो आ रहा है ना, ये ब्लैक इसमें, और आप ये पढ़ें. वो दूसरा पार्ट नजर आ गया आपको जो रेड हेडिंग के अंदर आ रहा है, पार्ट नंबर 315564. जी आ रहा है नजर. ठीक है. Yes, तो ma'am. see how
तो दोनों किस तरह से लिखा गया है? Any questions on this? मैम जो टेबल में लिखा गया है वो सही समझ आ रहा है, लेकिन जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। एट अ टाइम एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड बार बार आ रहा है और सही क्लियर समझ नहीं आ रहा। जी, तो बेसिकली द आइडिया इज कि हमें जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि एट अ ग्लांस लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है। और मैं यही कह रही थी कि अगर यही टेबल आप ग्राफिकल फॉर्म में भी कर दें तो उसका भी समझना सामने वाले के लिए, मतलब एट अ ग्लांस चीजें समझ में आ जाती हैं। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है ना? सो आपका लेआउट इस तरह से होना चाहिए, कीप इट इन अ फॉर्म ऑफ बुलेट्स, कीप इट इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स, आपकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और आपका जो है कि आपके अच्छी जो सारी डिटेल्स आ रही हैं वो इस तरह से आ जाए कि एट अ ग्लांस लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, I've just changed the page, आपको नजर आ रहा है? ऑडियंस रिकग्निशन। यस मैम। ठीक है, सो ऑडियंस रिकग्निशन बहुत जरूरी है। हम लिख किसके लिए रहे हैं? ठीक है ना? Who is writing to whom? What does the audience know, need to know, and want to know? When your audience fails to understand the text, you have failed to communicate. ठीक है ना? हम जैसे बच्चों के साथ बात करते हैं और हम जैसे डिफरेंट पीयर ग्रुप के साथ बात करते हैं, बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है ना? आप जब कोई चीज समझाते हैं, देयर इज वेरी डिफरेंट। अगर मैं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी देख लूं कि हमारे 3 टाइप के पेयर्स हैं, ठीक है ना? अगर ऑफिस के अंदर होते हैं ना, एक तो हाई टेक पेयर्स होते हैं, कम्युनिकेशन आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक होते हैं हाई टेक एंड लो टेक पेयर्स, दोनों। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि वो नर्स के साथ एक डॉक्टर बात कर रहा है, फर्स्ट में डॉक्टर टू डॉक्टर कॉन्वर्जेशन हो रही है, दूसरा है डॉक्टर टू नर्स, तीसरा है जो डॉक्टर है वो मरीज से बात कर रहा है। इन सब के अंदर उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है ना? अगर हम यहाँ देखें तो अगर आपका जो ऐसा हाई टेक पेयर ग्रुप है, उसमें अगर सपोजिंग आप जो है मार्केटिंग ही अगर आप लोग देख लें, मार्केटिंग के अंदर आप कुछ करें तो आपके वहां पे कोई ना कोई एब्रिविएशंस और एंक्रोनिम्स यूज होते हैं। आप अगर अपने ही क्लासमेट के साथ और अपने ही लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसके अंदर एब्रिविएशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप यही चीज आप अगर कंज्यूमर के साथ बात कर रहे हैं तो आप वो एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं जो जा रहा है आपके पीयर ग्रुप में ही, तो यू कैन यूज दोस टर्मिनोलॉजीज। बट व्हेन दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग आउट टू समबडी आउटसाइड योर ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप फिर वो वाले आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? सो यू हैव टू नो योर ऑडियंस व्हेनेवर यू राइटिंग अ टेक्निकल। अगर आप प्रोसीजरल गाइडलाइंस कोई लिख रहे हैं कोई मशीन की, उसको ये पता है कि इंजीनियरिंग टर्म्स तो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो हम जैसे लेमैन के पास जब जाएगी इंफॉर्मेशन तो हमारा समझना बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए काफी दफा जो है ना आपके प्रोसीजर मैनुअल के अंदर तस्वीरें भी लगी हुई होती है कि अच्छा हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कोई इंस्ट्रूमेंट की या कोई गैजेट की बात कर रहा होता है तो हमें बाय द नेम ऑफ इट वी डोंट नो व्हाट इट इज, and that's why they put a picture associated with that as well. So it is very important that who is your audience that you're talking to. ठीक है ना? काफी दफा जो है हमारे पास सीवीज आती हैं आईटी बैकग्राउंड के लिए, ठीक है ना? उसके अंदर होती तो हैं ये सारी चीजें कि अच्छा ठीक है हमने ये चीज की है, बहुत टेक्निकल होती हैं, बट फॉर एन एचआर पर्सन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे हैव एक्चुअली डन अनलेस, सो वो टेक्निकलिटीज के लिए इट हैज टू एक्चुअली गो टू द टेक्निकल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द सीवी सेज। इसमें जो है कहीं कहीं पे है ना उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए कि ये है क्या, ये चीज है। तो यू शुड नो हु योर ऑडियंस इज व्हेन गोइंग, ऑब्वियसली व्हेन एन आईटी पर्सन अप्लाइज टू एन आईटी फर्म दे एक्सपेक्ट कि उनको पता होगा कि ये सारे जार्गन्स क्या है और उनको पता भी होता है। ठीक है? सो ये वाली चीज है जी। इससे तो ये हो रहा है कि क्लैरिटी जो हमारी बेस करती है हमारी ऑडियंस पे, जिस तरह हमें फर्स्ट में आपने 2 ईमेल दिखाई थी, तो वो डिपेंड करता है कि ईमेल किसको सेंड की गई है। इस बेस पे पहली ईमेल भी बिल्कुल ठीक थी, हो सकता है जिससे सेंड की गई है वो ऑलरेडी वो सारी इन्फो जानता है, जस्ट नो वांट अ गिग के ये काम कर दिया जाए, उसे किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से एक जस्ट मैसेज मिला है कि ये काम करना है, तो दोनों वो फिर ठीक हो जाएंगी ना। नहीं, जो वो देखें पहले जब उसने कहा था कि आपको है ना सेल्स की प्रेजेंटेशन कर दें,
लेकिन कब है, कहाँ पे है, वो सारी डिटेल तो उसके अंदर है नहीं। टाइमलाइन कितना है, प्रेजेंटेशन तैयार कर दें आज शाम में है, ये 3 दिन के बाद है, वो सारी चीजें तो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर था नहीं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वो जो है ना, मतलब वो अगर ठीक है बाद में आप समझ रहे हैं कि ये लोग अलग से कम्युनिकेट कर दिया हुआ है, लेकिन इवन जो हमारी ईमेल्स है ना, अगर 2 लोगों की कम्युनिकेशन हो गई है कि एक सीईओ ने अपने सेल्स के बंदे को कह दिया कि आप सेल्स की जो है ये ईमेल मैं आपको भेज रहा हूँ, इस दिन है और सारा कुछ है, लेकिन इवन द ईमेल में ये सारी चीजें वापस दोबारा लिखनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल इज योर प्रूफ इन द एंड कि अच्छा ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आई है। कल उठकर वो अगर सपोजिंग कोई प्रेजेंटेशन में कोई गलती होती है या इट हैजंट बीन मेड क्लियर, they can always go back and the person can say कि मैंने ईमेल के अंदर ये क्लैरिफाई किया था कि मुझे इस टाइप की प्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशंस, ऑन द बेसिस ऑफ कि अच्छा ठीक है वो सामने वाले को समझ, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग समझते हैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा होता है लेकिन नहीं आ रही होती है बात। तो कम्युनिकेशन तो उसी वक्त आप फेल हो गई हैं कि अगर सामने वाले को बात ही नहीं समझ में आए और सामने वाला इतना हेजिटेंट है कि वो पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि आपके ज्यादातर ऑफिस के अंदर ये होता है कि बॉसेस हियरार्कीज चल रही होती हैं, तो जो है वो बंदा काफी सोच रहा होता है कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन का बैरियर है और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उस टाइप की ईमेल आ गई, जो वो पहले मैंने आपको जो एग्जांपल में दी थी, तो उसके अंदर जो बंदा है उसको ये लिखना चाहिए कि काइंडली लेट अस नो व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट नीड टू बी पुट इनटू दिस। Don't work on assumptions in the organization because that creates wasting of time and also कि आपकी जो deliverables हैं वो आपकी बिल्कुल सही नहीं बनती है। ठीक है? I think somebody raised hands. नहीं? मैम सवाल मैम, अभी आपने मतलब ये बता रहे थे ना ऑडियंस के बारे में, तो मैम हमें किस तरह पता, आप अभी जब आपने मतलब हमारे ये सेमिनार कंडक्ट किया तो मैं भी आप मोस्टली को आप नहीं जानती ना, तो आपको किस तरह से ये अपने पता चलेगा कि जो मेरे ऑडियंस है वो किस तरह की मतलब चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, या किस तरह हमें आपने कैसे रिकग्नाइज किया कि हमारा मूड कैसा है, हम क्या सीखना चाह रहे हैं आपसे, ये जरा बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन। और इट इज ये समहाउ जो हमारा ये कोविड स्टाइल ऑफ टीचिंग और सारा कुछ है ना, दैट हैज मेड इट वेरी डिफिकल्ट कि हम जो है ना अपने ऑडियंस को पहचान ही नहीं सकते। आई टोटली अग्री विथ यू कि इसके अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि यू नो हमारी अच्छा जो मुझे जो मालूम था वो ये पता था कि ठीक है ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं and who will be entering into the organization, तो इनका जो लेवल है वो मुझे एक बज़ाहिर एक बेसिक तौर पे मुझे मालूम हो गया था। बट विथ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, जहाँ पे कोविड की सूरत हाल की वजह से हम लोग इन पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो इवन फॉर मी right now I can only see my presentation and my face and I can only see your names. तो मुझे खुद को जो मेरी ऑडियंस है जो है वो मुझे इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि अच्छा ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ कीप चेंजिंग माय स्टांस, माय स्टाइल इन प्रेजेंटिंग दिस। तो ये जो है मुश्किल है नो डाउट टू आइडेंटिफाई हु योर ऑडियंस इज। थोड़ा बहुत बेसिक तो आइडिया होना चाहिए कि कौन है आपके, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल भी दी हुई है कि आपका हाई टेक्निकल पीयर ग्रुप है या आपका हाई टेक्निकल पीयर विद द लो टियर टेक्निकल पीयर है और बिल्कुल ही ले पर्सन है, तो ये तो बज़ाहिर आप लोगों को आइडिया होता है कि ये वाली चीज़ें हैं। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस आप थोड़े से डार्क में भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है। व्हेन यू आर इन वर्बल कॉन्वर्जेशन में जहाँ पे आपकी रिटन होती है तो वो खुद ऑटोमेटिकली आपके टू एंड प्रो कम्युनिकेशन होती हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ठीक है वो ऑडियंस को समझ में नहीं आया है। तो यस इन अ लॉट ऑफ केसेस थोड़ा सा हमें वो डार्क में हम होते हैं। मैम इसमें किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए कि हमें मतलब जब नई रिकॉग्नाइजेशन करनी पड़ती है, जब नई ऑडियंस से हम इंटरेक्ट। सॉरी वापस बोले, मुझे समझ में नहीं है। मैम मैं कह रहा हूँ कि जब आप नई ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए, मतलब हमें उनका मूड जानने के लिए। मूड नहीं जानना है आपको, सब उनकी जो है ना नॉलेज बेस जानना है, तो आप जरूर पूछ लिया करें कि कौन है लोग,
किस बैकग्राउंड से हैं और मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कि उनको जो है जब आप डेवलप कर रहे हो तो वो आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ईमेल डाल रहे होते हैं तब आपको अपनी ऑडियंस पता होती है। जहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस नहीं पता होती है, जैसे आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप अगर सपोजिंग कोई एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आपकी अगर ऑडियंस, आपको पता है कि आप अगर कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो आपकी ऑडियंस जो है ना थोड़ी सी टेक्निकल सैवी होती है, कि उन लोगों को आइडिया होता है कि वो लोग क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं, तो आपकी जो है ना नरेशंस जो होती हैं वो उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। एंड जहाँ पे नहीं मालूम होता है तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि जो ज्वेलरी बेचने वाला है उसका ऑडियंस वो डिफरेंट होता है, बट अगेन इन टेक्निकल राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपकी एज क्लियर एज पॉसिबल हो, आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो, कि इवन आपका ले पर्सन भी उसको समझ सके। ठीक है ना। फूड के अंदर भी जैसे आपका बहुत जरूरी है कि आपका ले पर्सन भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन डालना जरूरी है, लेकिन इट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी इन इट। ठीक है, ओके मैम। ओके। इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्यूरेसी जो है वो एक तो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि आपके नंबर्स करेक्ट हों, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी होना जरूरी है। Errors in technical writing makes the company and the employee look bad. Most importantly, errors can lead to damage, injuries, lawsuits, or even embarrassment and misunderstanding. तो आपकी अगर जो भी ये टेक्निकल राइटिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है, उसमें स्पेलिंग एरर, सपोजिंग कोई जॉब प्लेसमेंट आई है न्यूज़पेपर में, अगर उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो जो पढ़ने वाला है ना उसके दिमाग में ऑलरेडी हो जाता है कि अगर इस कंपनी की एड प्लेसमेंट में ही यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गया है तो पता नहीं कंपनी किस टाइप की होगी, ज्वाइन भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट क्रिएट्स एन इमेज इन योर ब्रेन। दैट इज वाई कि जो भी आपकी टेक्निकल राइटिंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत दफा उसको जो है, एंड हाउ डज इट बिकम एक्यूरेट? स्पेल चेक। आजकल तो कंप्यूटर के अंदर स्पेल चेक होता ही है, उसको देख लें। किसी आपने एक दफा एक दिन में टाइप कर लिया है, दोपहर में टाइप कर लिया है, उसको थोड़ी देर के बाद जाकर देखें। जब हम खुद ही एक चीज बना रहे होते हैं और उसी को प्रूफ रीड कर रहे होते हैं तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि हम ओवरलुक कर जाते हैं कि हमारी खुद की मिस्टेक्स क्या होती हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेस आउट करें। आई प्रेफर टू स्पेस आउट तो ठीक ठाक, मतलब 4-5 घंटे इसको स्पेस आउट कर दें, या तो लिख रहे हैं कि फॉर अ डे और फॉर अ वीकेंड, कि यू कैन लुक एट इट विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। हम लोग यहाँ पे जैसे कोई गाइडलाइंस या कोई वर्क फ्लो बना रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगर सपोजिंग कोविड है तो कोविड के अंदर अगर आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक पूरा वर्क फ्लो सिस्टम बनता है। तो ये जो बनाने वाला होता है ना, उसके बाद वो दूसरे बंदे से जरूर चेक करवाता है कि ये जो है वो सही वर्क फ्लो बना है कि नहीं बना है। सो यू नीड अ डिफरेंट पेयर ऑफ आइज। आइदर खुद आप देखें 4-5 दिन के बाद वो वाली चीजें, या पीयर इवैल्यूएशन करवा लें, किसी और को दिखा लें। जनरली ऑफिस के अंदर हियरार्कीज इस तरह से बनी हुई होती है कि वो कोई ना कोई देख लेता है। इसको रीड इट अलाउड करें। तो हम जो है मतलब whenever we are making all of these things, it is very important कि हमारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, कभी कभी मोस्टली ये होता है डेट हमने कुछ डाल दी है, दिन वेडनेसडे डाल दिया है, डेट कुछ और आ रही है, it doesn't collaborate. A lot of times emails come back and that just kind of creates an impression कि अच्छा ये ठीक है, ये तो वो गलत ही लिखा है, days और date में there is no collaboration between the two. So that has to be, you know, those things have to be very accurate when you are sending out a technical communication. ठीक है ना? So थोड़ा सा हम जो है ना इसको, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ी सी एक्टिविटी हमने जो कंसाइसनेस की जो बात की थी ना, चले सेंटेंस है, अगर आपने अपनी कवर लेटर में लिखा है कि आई हैव अ वेरी लो जीपीए और वेरी हाई जीपीए, हाउ वुड यू रीराइट दिस सेंटेंस सो दैट इट इज नॉट अ वेग सेंटेंस? एनीबॉडी? फर्स्ट वाला आई हैव लो जीपीए, किस तरह से उसको रीवर्ट करेंगे? इसको हम कहते हैं माय सॉरी मैम, ज्यादा मेहनत करके। लाउडली बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही है।
मैं कह रहा था ज्यादा मेहनत करके। इसमें आप डालेंगे ना कि आपको कितना जी 2.7 वगैरह। हाँ, तो आप कहते हैं माई जीपीए इज 2.7, ठीक है ना। तो आपका वेक वर्ड है, तो अगर आपकी कवरिंग लेटर में अगर आपने लिखा है कि आपका वेरी हाई जीपीए, दैट विल नॉट वर्क। यू हैव टू राइट आई हैव माई जीपीए इज 4 और उसको हाईलाइट कर दें। तो उसके अंदर देखिए वहीं पे आप लोगों का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। The baseball player was really tall. स्पेसिफिकेशंस जो है ना टेक्निकल राइटिंग के अंदर, मतलब अगर आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा तो यहाँ पे भी ये डालेंगे कि द बेसबॉल प्लेयर वाज 7 feet tall, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग करें। द टीम हैज अ लूजिंग रिकॉर्ड, किस तरह से होगा? एनीबॉडी, एनी वॉलंटियर्स? मैम हम एवरेज भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं? जो प्रीवियस मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं तो उनकी एवरेज लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो टीम हैज एन एवरेज ऑफ 2 against has a losing record, right? So it has a 2 against 5 yes. loss, ठीक है ना। और इसके अंदर आप चाहें तो हम, अच्छा एक और जो चीज है ना, जो टेक्निकल राइटिंग के अंदर या एनी राइटिंग के अंदर, ऑलवेज पुट द पॉजिटिव फर्स्ट। और यहाँ के एग्जांपल्स जो है ना कि आप लो जीपीए, तो लो जीपीए तो आप अपनी जब कवरिंग लेटर लिखेंगे तो उसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप जब हाई जीपीए करें तब उसके अंदर जो है ना, मतलब ऑलवेज यूज द पॉजिटिव फर्स्ट। So that is very important to any kind of writing के अंदर बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिविटी को लेकर जाए। अनलेस ऑब्वियसली आपको आपका टॉपिक ये है कि आपको जो है ना अदर साइड ऑफ द स्टोरी लिखनी है, ठीक है ना। द कंप्यूटर हैज लॉट्स ऑफ मेमोरी। द कंप्यूटर, मैम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लेंगे ना, द कंप्यूटर हैज 50 GB और समथिंग जो yes भी होगा। exactly, so it has to be very specific and nothing like this, ठीक है ना। अभी एक और एक्सरसाइज है, इसको शॉर्ट वर्ड्स में चेंज करना है। सर यूटिलाइज वर्ड हो, इसका शॉर्ट वर्ड क्या होगा? यूज। हाँ जी, यूज। एंटिसिपेट, क्या है एंटिसिपेट? जी, आई थिंक, क्या कह रहे हैं? सॉरी की आवाज बहुत कम आ रही। थिंक। कॉपरेट, हेल्प, हेल्प जी। इंडिकेट, मार्क, मार्क। इनिशियली, स्टार्ट जी। So I mean again the idea is behind this is कि difficult इस्तेमाल नहीं करें, आसान इस्तेमाल करें, short words इस्तेमाल करें कि फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो concise हो। चलिए लॉन्ग phrases हैं, in the event that, इसको आप one word में कैसे करेंगे? meantime कर सकते हैं in the event that. Any other word? Eventually. Eventually, yes. सही है, ठीक है। At this point in time. currently, now presently, perfect, ठीक है। With regards to, with regard to, Respecting. हाँ, according respecting, to yeah. In the first place, initially, firstly firstly, जी। Is of the opinion that, point, In view. argument, in view, viewpoint in view, I think. the point of point, ठीक है। So I think now you get the gist of it कि हम क्या टेक्निकल राइटिंग के अंदर क्या है और फर्क है
कहाँ पे फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे और sentences हैं, maybe if we can just go through this quickly, so we can wrap this session now. I will be calling you on May 31st to see if you have any questions at that time. I will call back. You can ask the question on May 31 on call. सही है, ठीक है. If I can be of any assistance to you in the evaluation of this proposal, please feel free to give me a call. If you need any help, if you need help in the evaluation of this proposal, call me. हाँ, सही है. Please give me a call for evaluation. हाँ, सही है. The company is in the process of trying to cut the cost of expenditures relating to the waste of unused office supplies. मैम इसमें सिंपल आ जाएगा, द कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट about the waste of unused office supply. Relating to unused. Waste to the waste हटा दें, is in the process हटा दें. The company is trying to cut the cost of expenditure relating to unused office supplies. I am of the opinion that Acme employees have too much work to do. I think लगा लें अगर मैम बाकी From my point of view, Acme employee has more work. So in point of view भी करने की जरूरत नहीं है. In my view, Acme employees have too much work to do. भी वो हो रहा है. Too much work to do. I think. In the month of July, my family will make a visit to the state of Arkansas. In July, my family will visit the state of Arkansas. हाँ, सही है. जैसे हमने month को हटा दिया because month and July, we know कि July is a month. Arkansas is also a state. तो हम state का भी नाम हटा सकते हैं. ठीक है ना? It is the company's plan to take action to avoid problems with hazardous waste. The company is taking actions against the problems of hazardous waste. इसमें से problems को भी हटा दें क्योंकि hazardous waste is a problem. We know that, right? The company plans to take action against hazardous waste. Does that sound okay? Okay. 7th, on 2 different occasions, the manager of personnel met with at least several different employees to ascertain whether or not they were in agreement with the company's policy regarding overtime. Now, it's such a long sentence. आप शुरू में पढ़ते हो, जब तक आप एंड तक पहुंचते हो तब तक आप घूम चुके होते हो कि क्या क्या रहा है सेंटेंस. So the personnel manager met with different employees to ascertain whether they were in agreement with the company's policy, whether they were in agreement with company's overtime policy. Does that make more sense? Yes, ma'am. Okay, so what we've actually kind of done is, the objective of this is what is really technical writing. It is very important, especially when you come into your workplace. Writing skills आप लोगों ने schools और colleges में सीखी हैं, creative writing skills. अभी जब आप लोग workplace में आएंगे, to a certain extent आप लोगों की creativity आप लोगों को side पे रखकर बहुत ही concise, clear
एक डिफरेंट लेआउट के साथ आपको अपना मैसेज करना है. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And how you do it is by making it, it has to be clear, whatever you say, it has to be concise. It has to, there is a certain style that you adopt. Don't be too descriptive, but make sure that your message is sent across, which is factual as well. So the idea behind this is, this was just a kind of a touch base situation right now. And just so that जब आप लोग कल मार्केट में आते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, it is very important that you keep these things in mind. I think first and the foremost, जब आप लोग अपनी खुद की CVs बनाएंगे, make sure कि आप लोग ये सारी चीजें इसके अंदर incorporate करें. बहुत अच्छी CVs इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी. आजकल के ज़माने में आप हर चीज़ गूगल करें, आपको मिल जाएगी. लेकिन do look at things that would make for a reader, जो आसानी से वो पढ़ सके, catchy हो और सामने वाले को समझ में भी आ जाए. ठीक है ना? So this is from me. If you have any questions, you can ask me, or we can wrap it up. मैम आपके टेक्निकल राइटिंग पे कोई कोर्सेज वगैरह या फिर ऐसे नहीं है, वीडियोस यूट्यूब जैसे हो चैनल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है? मेरे नहीं, सच तो कुछ नहीं है, because I'm not into full time teaching and doing this, but I think ये वाली रिकॉर्ड हो रही है. If you want to take a look, but if there's something what I can do is कि मैं forward कर दूंगी. I've got one write up जो मेरे पास है, वो मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं email कर दूंगी. So maybe that would be helpful for you when you guys are looking at it. Yeah, sure. Again, I'll forward it to Sahar and then she can forward it to you. ठीक है? So any questions? I hope this was helpful. Yes, ma'am. All right, Yes, great. ma'am. Very good. Charlie, great. So I will hand this over back to the organizers. Thank you so much, Nausheen, for conducting an amazing session. I hope the audience had a great experience and learning new things. Please mark your attendance if you haven't marked your attendance, and also please share your feedback on the given link as well. Thank you, Nausheen. Students, please don't leave the meeting. Another trainer will be joining in for the next session at 2 p.m. Good afternoon from my side. Good afternoon. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Thank you very much, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Goodbye. एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने फीडबैक फॉर्म दिया है इसमें वर्कशॉप नेम में ये टेक्निकल राइटिंग और एफआईपी बिजनेस प्लान दोनों नहीं शो हो रहे. अच्छा, just give me a minute, मैं इसे अपडेट कर देती हूँ. Just give me a minute. ओके.